Good morning, students. Yesterday we studied about elements, compounds, about atoms and molecules. Today we will study how to calculate molecular mass of the compound. And after that we will study a very important concept, more concept. How molecular mass of the compound is calculated. First you learn atomic mass of different elements. Atomic mass of different elements. Symbol. You learn symbols of different elements. What is symbol of hydrogen? It is H. Atomic mass of hydrogen is 1. Atomic mass is always represented in unit, atomic mass unit. If you are asked about the atomic mass of any element, suppose of hydrogen, you say atomic mass of the hydrogen is 1 atomic mass unit. And actually it is mass of 1 atom of hydrogen. Now you take another example. Oxygen. Oxygen. What is symbol of oxygen? It is O. What is atomic mass of oxygen? It is 16 atomic mass unit. We take example of other very important element. It is carbon. Its symbol is C and its atomic mass is taken as 12 atomic mass unit. Next example, we are going to take of nitrogen. Its symbol is N and its atomic mass is 14 atomic mass unit. Okay. Calcium. Its symbol is Ca. Actually, with the letter C, we have given the symbol of carbon. यदि हमने C सिंबल कार्बन का दे दिया है, तो कैल्शियम का जो फर्स्ट लेटर है C, हम इसका सिंबल C ओनली नहीं दे सकते. हम क्या करते हैं, नाम में से एक इंपॉर्टेंट लेटर ले लेते हैं. इस नाम में से हमने क्या किया, A लेटर ले लिया, तो कैल्शियम Ca इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम एंड इट्स एटॉमिक मास इज 40 एटॉमिक मास unit. Okay, one important thing I want to tell you. Actually, what has been done? क्या किया गया? जो कार्बन है, इसको ध्यान दो. इसका एटॉमिक मास हमने 12 एटॉमिक मास यूनिट एज रेफरेंस रखा है. ठीक है, जैसे हम सपोज कर लें दिस लेंथ इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, दिस चौक इज ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ. Suppose any other substance, any other chalk is 2 times of the length of this chalk. Now length of this chalk we have taken as reference 1 centimeter, and if any another chalk is twice the length of this chalk, what will be the length of that chalk? It will be 2 centimeter. Now suppose this pencil, you can see, is 4 times the length of this chalk. This pencil is 4 times of the length of this chalk. We have considered length of this chalk as 1 centimeter. We have considered length of this chalk as 1 centimeter. And this pencil is 4 times the length of this chalk. So length of this pencil will be 4 centimeter. In this way, we take reference. So in case of atomic mass, we have taken mass of the carbon, mass of 1 carbon atom as 12 atomic mass unit. हमने रेफरेंस के तौर पे कार्बन को ले लिया है, ये याद रखो. कार्बन का जो हमने
एटॉमिक मास है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट कंसीडर किया है. लिसन टू मी केयरफुली. नाउ व्हेन वी स्टडीड मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन. इस चीज को समझने की कोशिश करो. हमने कार्बन के मास को 12 एटॉमिक मास यूनिट लिया और दूसरा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास इससे 1/12 है, इसका 1/12 है, जिसका मतलब क्या है 1/12 ऑफ कार्बन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. तो हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका मास कार्बन के मास का 1/12 है. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट. इसी तरीके से बाकी सब एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास हैं वो हमने कैलकुलेट किए हैं. हमने कार्बन के मास को रेफरेंस के तौर पे लिया है. कार्बन के एक एटम का मास 12 एटॉमिक मास यूनिट दिया गया है और इसके कंपैरिजन में सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास यू कैन लर्न द एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. ठीक है. Now we are going to study very important topic, how to calculate the molar mass of different substances, molecular mass of different substances. आपको समझ में आएगा. आप एक बार ध्यान से कीजिए. हमने अभी क्या किया, एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स और उनके एटॉमिक मासेस. अब हम करने जा रहे हैं molecular masses of different elements, different substances, different molecular masses of different substances, not only of elements, molecular masses of different substances of compounds. उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ ताकि एटॉमिक मास का कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए. लिसन टू मी. जो आज तक स्टडीज की गई हैं वो क्या बताती हैं. Consider the atom of carbon. Okay. कार्बन. अब आपने याद तो कर लिया कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 एटॉमिक मास यूनिट है. लेकिन ये कैसे एक्चुअली हम देख सकते हैं कैसे हुआ. कार्बन के एटम को यदि हम डिटेल में समझें तो carbon atom is having 6 protons, carbon atom is having 6 nitrons, and carbon atom is having 6 electrons. 3 types of particles are present in the atom. Protons and neutrons are present in the center, in the nucleus of the atom. Okay, and electrons are revolving in different shells around the atoms. Electrons are around the nucleus. Electrons are revolving around the nucleus in different shells. In case of carbon, in the first shell there are 2 electrons, and in second shell there are 4 electrons. Okay, this is atom of the carbon. Now atomic mass of proton, एक बार आप लर्न करो बेटा, 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम. और लर्न मत भी करो बेटा. आपको यदि ग्राम्स में हम मास बताते हैं प्रोटॉन का, ये कितना बता रहे हैं 1.67 into 10 raised to power -24 ग्राम. बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 और ये आपको याद करना मुश्किल पड़ जाता है, इतनी ज्यादा पावर. तो तुम एक बात और याद कर लो, इतना मास जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास. ये बात समझ में आई कि वो हमारे लिए ज्यादा आसान है कि जैसे हम कहें कि 1 किलोग्राम और एक दूसरा बच्चा कहता है 1000 ग्राम्स. बोथ आर करेक्ट, बोथ आर सेइंग द सेम थिंग. कि तुम 1000 ग्राम में बात कर रहे हो एंड दूसरा बच्चा 1 किलोग्राम की बात कर रहा है कि आई हैव बोट 1 kg ऑफ पोटैटोस एंड अनदर स्टूडेंट सेज I have bought 1000 grams of the potatoes. Both are saying the same thing. And another student, he says, I have bought, मतलब कि कितना, चलो ये छोड़. अच्छा रुको,
आप आगे चलते काटेंगे। चलो अब इतनी बात होगी कि यदि आप ये कहते हो कि एक प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, और यदि दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो वो सेम बात कर रहे हैं, बिकॉज 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। नाउ लिसन केयरफुली, कार्बन एटम इज हैविंग 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स. Mass of the neutrons is almost equal to the mass of the proton. What is mass of the proton? 1 atomic mass unit. अब आप इस तरह से बात कर सकते हैं. And what will be the mass of the neutron? Mass of neutron. It is also equal to 1 atomic mass unit. Mass of proton. ठीक है, हम ग्राम्स में हमने आपको बता दिया है, बच्चे लर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आगे 11th में जब आप जाएंगे तो इस पे कैलकुलेशंस हैं, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब पे कैलकुलेशंस हैं। लेकिन इस टाइम अभी आप एटॉमिक मास यूनिट में बात कीजिए कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट इज वेरी लेस. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस. It is 9.11 into 10 raised to power -28 grams. बेटा अब ये देखिए कि यहाँ पे फिर वही पावर्स में बात आ गई, 10 raised to power -28 grams. तो हम यदि ग्राम्स में बात करें, एटॉमिक मास यूनिट में बात करें, तो एक्चुअली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट इज 1/1837 टाइम्स the mass of the proton. सुनो ध्यान से बेटा, यदि हम कोई चीज लेके आते हैं 100 किलोग्राम, 100 ग्राम से, सपोज 100 ग्राम, what will be the 1/10 of 100 gram? 1/10 of 100 gram, it will be 10 grams. What will be the mass of 1/100th of the mass of that substance we have taken from the market, whose weight is 100 ग्राम. तो यदि उसका 100th निकालना हो तो मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम ओनली. 100 ग्राम के कंपैरिजन में 1 ग्राम. लेकिन यदि मास आप यहाँ ध्यान से देखो बेटा, मास 1/10 टाइम्स भी नहीं है, 1/100 टाइम्स भी नहीं है, इट इज अप्रोक्सीमेट 1/2000 टाइम्स. तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है. मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, बेटा कुछ लिमिटेशंस हमारे पास यहाँ पर हैं कि हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है, और कुछ लिमिटेशंस हमारे पास क्लास में भी होती हैं जो कि यहाँ पे नहीं है. आप देखेंगे क्लास में हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आप पोटैटो लेके आए, आप अनियन लेके आए, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली मैं अनियन और पोटैटो लेके आई हूँ, जिसकी हेल्प से मैं एटम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता रही हूँ आपको. ध्यान से सुनो बेटा. you consider all the onions as protons. Suppose this is one proton. Suppose this is one proton. This is another proton. Okay. Onions we have considered as protons, and potatoes we have considered as neutrons. Okay. You consider the atom of carbon. Carbon atom is having 6 protons. We have considered onions as protons and potatoes as neutrons. Now this atom is having 6 protons. अब आप ये बिल्कुल भूल जाओ कि ये अनियन है, ये प्रोटॉन्स हैं, इसको दिमाग में रखना है आपको. ये प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास इस टाइम कितने प्रोटॉन्स हुए? 6 प्रोटॉन्स हुए और 6 ही न्यूट्रॉन्स हुए. आप इस बात को एक बार समझ लो. आप इतनी बात समझ लो, चाहे आप आधा घंटा बैठो, लेकिन यदि आप 9th के बच्चे ये बात समझ लेते हो तो वो तुम्हारे दिमाग से कभी निकलने की नहीं है. और ये बात जो है तुम्हें लाइफ भर केमिस्ट्री में हेल्प करेगी. केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर जगह ये चीज हेल्प करने वाली है कि आप ये कंसिडर करें कि हम एक कार्बन एटम को स्टडी कर रहे हैं, और अनियन को हमने प्रोटॉन माना है और पोटैटोज को हमने न्यूट्रॉन माना है. तो कार्बन एटम में देयर आर 6 प्रोटॉन्स, राइट. नाउ देयर आर 6 न्यूट्रॉन्स, राइट.
आप आलू को न्यूट्रॉन ही मानेंगे और प्याज को आप प्रोटॉन ही मानेंगे. देयर आर 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स एंड एटॉमिक मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. ओके बेटा, I am going to teach you about the structure of the atom. We are taking the example of carbon atom, and you have studied that carbon atom is having 6 protons, 6 neutrons and 6 electrons. Mass of one proton is equal to 1.67 into 10 raised to power minus 24 gram, and this is equal to 1 atomic mass unit. Mass of neutron is also equal to mass of proton, means its mass is also taken as 1 atomic mass unit. Mass of one electron is 9.11 into 10 raised to power minus 28 gram. मतलब कि इनसे कितना 1/2000 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन से. तो प्रोटॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट, न्यूट्रॉन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका मास काफी कम होता है. तो मैं एक बार कार्बन का एग्जांपल लेके चलती हूँ कि सपोज अब इस केस में तुमने क्या कंसीडर किया है, अनियंस हैव बीन कंसीडर्ड एज प्रोटॉन्स एंड पोटैटोस हैव बीन कंसीडर्ड एज न्यूट्रॉन्स. नाउ देयर आर 6 प्रोटॉन्स in the carbon, in the nucleus of the carbon, and there are 6 neutrons in the nucleus of the carbon. Okay, and electrons are revolving around the nucleus. Now, how mass of the atom is calculated? Now, these protons, all these 6 protons and 6 neutrons, these are present in the nucleus. We considered this bag as nucleus of the carbon atom. Now, whole mass of the atom is concentrated in the nucleus, and you consider these very small. आप देखो, थोड़ा सा देख लो दीदी, तो बहुत ही छोटे छोटे साइज के मैंने दाने लिए हैं. ठीक है, तो इनको हम इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं. तो मतलब कि हमारे घर में जैसे अजवाइन हो, कस्तूरी मेथी हो या धनिया हो, सूखी धनिया, तो आप उनके बीज लेके उन्हें इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लीजिए. तो ये कार्बन का न्यूक्लियस है और इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं. इन फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन सेकेंड शेल देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब बच्चे इस बात को समझो, देखो जितना भी तुम देख सकते हो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम स्ट्रक्चर देख सको कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. अब मेरे को ये बात बताओ कि यदि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मास कितना होगा न्यूक्लियस के कंपैरिजन में? जो ये मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा? बहुत कम. तो होता क्या है, हम इलेक्ट्रॉन्स का मास कंसीडर करते ही नहीं है बेटा, क्योंकि ये बहुत कम होता है. इलेक्ट्रॉन्स का मास अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनका मास इतना कम हुआ. तो एटम का मास कंसीडर करते वक्त हम क्या कंसीडर करते हैं? देयर आर 6 प्रोटॉन्स मीन्स 6 एटॉमिक मास यूनिट, देयर आर 6 न्यूट्रॉन्स मीन्स 6 एटॉमिक मास यूनिट. टोटल मास ऑफ द कार्बन एटम इज 12 एटॉमिक मास यूनिट. Because mass of electron is very less, so mass of electrons is ignored. Okay. One example I want to take another example. We take the example of oxygen atom, very important atom. Oxygen, it is written like this. Okay. This represents the atomic number of the atom. Atomic number of oxygen atom is 8. Actually, atomic number tells us atomic number is equal to number of protons in the nucleus of the atom. Number of protons in the nucleus of atom. इस
इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने हो गए? यदि हमने कहा एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन्स कितने हो गए? प्रोटॉन्स आर 8। और यदि हम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी निकालना चाहें, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 प्रोटॉन। और यदि 8 प्रोटॉन्स हैं ऑक्सीजन के अंदर तो कितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। एंड इफ 8 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, total positive charge on the nucleus of the oxygen atom is 8 units. पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 8 यूनिट्स। तो उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में। जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी तो न्यूट्रल है एटम। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हम एटॉमिक नंबर से देख सकते हैं। न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? इज इक्वल टू 8। ठीक, अभी हमने किया कि जो एटॉमिक मास होता है, वो प्रोटॉन्स का और न्यूट्रॉन्स के मास का सम होता है। कैसे सम होता है? एक प्रोटॉन का मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट। इस केस में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स हैं। 8 प्रोटॉन्स मीन्स मास ऑफ द एटम इज 8 एटॉमिक मास यूनिट, 8 एटॉमिक मास यूनिट ड्यू टू 8 प्रोटॉन्स। ठीक है, मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स you can write like this, mass of 8 protons, 8 protons mass is equal to 8 atomic mass unit। लेकिन हम यहाँ पे 16 लिख रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि atomic mass of oxygen is 16, means how many neutrons are present in the nucleus of the oxygen atom। बता सकते हो? जब 18 तो प्रोटॉन्स हैं, इस कारण से न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स हैं, तो 8 एटॉमिक मास यूनिट हो गया मास। लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन एटम का मास 16 एटॉमिक मास यूनिट है। इसका मतलब जो 8 का डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, मींस 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द ऑक्सीजन एटम। हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन के केस में एटॉमिक नंबर कितना है? 8। एटॉमिक मास कितना है? 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 minus 8 is equal to 8. 8 will be number of neutrons.